to everyone. Good evening to everyone. This time is going to start this webinar, and sorry for the interruption. We couldn't start just because of the time difference among the Pakistani and all other country members. So first of all, I welcome to all the participants to join us, and let's have an introduction of this short introduction of this webinar. Then we are going to invite our worthy speaker, and he is also online. First of all, let's introduce this webinar. This webinar is purely regarding the NEPTI National Physical Therapy License Examination, which is a license examination for the USA and all other country physios. They are going to apply. They are going to apply. So need to start this webinar. So this webinar is regarding the NEPTI, National Physical Therapy License Examination. Now I am going to invite our worthy speaker. Let's have an introduction of him. Dr. Bhupender Singh is a PhD scholar in physical therapy from University of Iowa, USA. And he is also a associate professor at DPT program in California University, founder and owner of NEPTI, National Physical Therapy Examination, Final Frontier, and USA and Canada. After that, he is also a president of FACTS for the PT, which is non-profit, and he has done more than 100 the international conferences and presentations. I would like to introduce a small experience of myself with Dr. Bhupender. First of all, he's very nice and humble personality. Secondly, he's very dedicated and talented, no doubt, and very senior. Thirdly, when I started the preparation of NEPTI, I just found one and only one name, and that was the Dr. Bhupender. I don't say that without Final Frontier, which is the team, which is the association of Dr. Bhupender, I don't say that if you join NEPTI, you are all. We can't say that without joining the NEPTI, NEPTI clear final front without joining the final frontier, NEPTI is impossible. But I must say that if you join the NEPTI, if you join the final frontier, then your NEPTI clearance is very easy and 100% sure, and there is a possibility of more than what we can say that 90% of the chances of the clearance of your NEPTI examination if you join, because the association is working very hardly, and the way they deliver the lectures, they deliver the session is just outclass. I have taken many classes personally from the Dr. Bhupender also, and his team. They are doing a very fantastic job. So I'm not taking more time from you guys. I need to invite. So please welcome Dr. Bhupender Singh, and now it's over to you, sir. Okay, thank you, Dr. Dilip. So, namaste, assalamu alaikum, sat sri akal, hello and good evening for everyone joining here. And I will share my screen. It is my understanding that most of you are from India, Pakistan, or Asia, and this session is going to be delivered in your native language. Okay, so if you are attending by mistake, or if you are a team member and supporting us, we welcome you, but you get to listen to me in a different language today. Okay, we are recording this. If you miss anything, they will be available of the video later on. चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। तो सबके लिए वेलकम है कि आप लोग सब आए यहाँ पे, आपने अपना टाइम दिया है हमें संडे को। तो मेरा मकसद आज जो मेन डॉक्टर दिलीप ने बोला कि हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि कैसे फिजिकल थेरेपी लाइसेंस पास करना है यूएस के लिए। कनाडा के लिए भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बट मोस्टली ये यूएस का लाइसेंस कैसे क्लियर करना है उसका पूरा प्रोसेस इस वेबिनार में बताया जाएगा। ये कुछ 50 मिनट से 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है, बट जब खत्म हो जाएगी तो बाद में मैं क्वेश्चंस भी आपके आंसर कर सकता हूँ। हम लोग जूम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका
ऑडियो और वीडियो अवेलेबल है, अगर आपको ऑन करके रखना है तो ठीक है, बट बीच में इंटरप्शन ना हो तो थोड़ा वीडियो म्यूट करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं। पहले थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर्स। मेरा बहुत प्यार है, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं अभी प्रोफाइल बता दूंगा अपना प्रोफेशनली, बट पर्सनल बैकग्राउंड है कि मैं अमृतसर पंजाब में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, और पहले 20-22 साल मैंने वहीं गुजारे हैं इंडिया में। तो जब मेरी बात हुई दिलीप कुमार से, उन्होंने कहा कि आपकी टीम में कोई दे दें जो हिंदी और उर्दू बोलने वाला हो और मेरे से वेबिनार करा दे मेरी कंपनी के लिए। तो मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं खुद करूंगा ये वाला, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप यूएस में आके सेटल्ड हो, इतने सालों से सब कुछ दिया है भगवान ने, बट अपने लोगों से अपनी भाषा में बात करने का मजा कुछ अलग होता है। तो उनके लिए स्पेशल थैंक यू कि इन्होंने अरेंज किया। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं और सारा अच्छा मैनुअल थेरेपी का सबको समझा रहे हैं। कुछ मेरे अजीज दोस्त और कलीग्स भी हैं इस रूम में मौजूद। सबसे पहले डॉक्टर आबिस हैदर, ये किंग एडवर्ड से इन्होंने अपनी करी थी बीपीटी और मास्टर्स, और फिर यहाँ आके पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने मुझे थोड़ा फीडबैक दिया कि ऐसे ये मेन चीजें आपको कवर करनी चाहिए ऐसे वेबिनार में, कि पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएं, बिल्कुल एडवांस्ड लेवल पे नहीं जाएं। सतीश भोजवानी प्रिंसिपल हैं आपके, ये काफी देर से हम मेरे साथ कांटेक्ट में है, 2015 से बहुत प्यार बना हुआ है। और पुराने कुछ स्टूडेंट जो भी कलीग हो गए हैं, सबके नाम तो मैं नहीं ले सकता, 70-80 स्टूडेंट्स हमारे पास हो चुके हैं पाकिस्तान से, बट कंदील सरदार हो गए, इमरान हो गए, हारिस भाई, नबील भट्टी, काफी सब लोगों का स्पेशल थैंक यू कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। ओके, तो प्रोफाइल तो सब लोग देख ही लेते हैं ना, सीवी पे रेज्यूमे पे आप क्लिक करेंगे नाम मेरा तो खुल जाएगा गूगल पे। तो प्रोफाइल की आज ज्यादा जरूरत नहीं है। आई थिंक आज मेन मकसद मेरा ये है कि कैसे रास्ता बताया जाए सबको कि लीगली अच्छे तरीके से आप यहाँ से पाकिस्तान से, या कुछ इंडियन भी हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, कि आप नॉर्मल तरीके से बिना ज्यादा खर्चा किए, ज्यादा मिस गाइडेंस लिए कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो प्रोफाइल में काफी साल हो गए, पीएचडी करने आया था मैं यूएस, सीधा ही मास्टर्स और पीएचडी का प्रोग्राम होता था तब, वो स्कॉलरशिप में होता था। इसका मतलब कि वो आपकी सारी फीस भी पे करते थे, आपको स्टाइपेंड भी देते थे। और नंबर 3 रैंक में थी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, वहां से मैंने अपनी पीएचडी करी हुई है। और इसके बाद मैंने भी लाइसेंस एग्जाम दिया, पहले न्यूयॉर्क के लिए दिया, फिर पास किया, फिर जिस जिस स्टेट में रहा वहाँ वहाँ का लाइसेंस मैंने रखा अपने पास। और आजकल पिछले 8 साल से कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरा मेन जॉब है। रिसर्च प्रोफाइल है गेट, एक हमारी लैब है गेट एनालिसिस की, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और एमप्यूटी क्लिनिक एक चलाते हैं फ्री में, प्रो बोनो कहते हैं उसको। और फिर 8 साल से एक टीचिंग करियर में भी अपने डीपीटी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर के पढ़ाने का मौका मिलता है। और आज का रोल मेरा ये होगा कि एक तो फाउंडर ऑफ एनपीटी फाइनल फ्रंटियर, जहाँ पीसीई फाइनल फ्रंटियर भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये कनाडा के लिए, अगर आप किसी को कनाडा जाना है तो आप वो सोच सकते हैं कि कैसे प्रोसेस शुरू करना है। बट मोस्टली मेरा रोल आज ये होगा कि एनपीटी फाइनल फ्रंटियर का बताऊं थोड़ा। और सेकंड, मैं नॉन प्रॉफिट एक है हमारी जीरो कॉस्ट कंपनी, उसका नाम है फैक्ट्स फॉर पीटीज, फॉरेन एकेडमिक क्रेडेंशियल टूल्स एंड इवैल्यूएशन। क्योंकि अब लोग सब लोग सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहला सवाल होगा कि मैं कैसे जाना है मुझे वहाँ पे, जहाँ कौन से कोर्सेज लेने हैं, मेरी डिग्री सफिशिएंट है कि नहीं है। तो वो सब के लिए हम नॉन प्रॉफिट खोली हुई है, और मेरे नॉन प्रॉफिट के कुछ मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसका लिंक है factspt.org। तो आपको हम चैट में भी ये लिंक्स दे देंगे अगर आपको थोड़ा और इस बारे में जानना है। तो इन दोनों रोल्स में फाइनल फ्रंटियर का कैसे करना है और आपको प्रोसेस कैसे करना है, उसमें सारा टाइम आज हम गुजारेंगे। पर आपको अगर कोई और भी सवाल हो, जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे पुराने हैं जो पीएचडी करने के लिए आए या मास्टर्स करने के लिए आए, तो बिल्कुल कोई झिझक नहीं है, आप मुझे बोलें, आप कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड कर सकते हैं। बट आज का वेबिनार जो है वो नेप्टी और एनपीटीई के लिए ही फोकस्ड है। अगर कुछ सवाल है तो चैट में आप लिखते रहें। दिलीप भाई को तो मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया, बट दो और मेरे बड़े अजीज टीम मेंबर्स हैं
चैट में, इनका नाम आप सर्च कर सकते हैं, NPTEFF अगर डालेंगे तो एक आकांक्षा शर्मा है, ये न्यू दिल्ली से, इंडिया से इन्होंने अपना मास्टर्स किया हुआ और काफी सालों से यहाँ पे हैं। और फिर नीरज तनकारिया हैं, ये थोड़ा ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा इनके बारे में क्योंकि ये हिंदी में नेप्टी की कोचिंग देते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स पाकिस्तान के या इंडिया से इनके थ्रू क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई सवाल भी पूछने हैं तो आप चैट में पूछते रहें साथ साथ, जहाँ मैंने भी अपनी स्क्रीन पे चैट खोली हुई, मैं भी आंसर करता हूँ। चलें, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा हो गया, एक आप थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दें, अपना चैट में नाम लिख दें कि कौन है और थोड़ा बता दें कौन से प्रोग्राम से हैं या कौन से स्कूल से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने करा हुआ है। पोल भी मैं चला देता हूँ अगर वो बेहतर रहेगा, तो उसमें आप बता दें कि आपने CMT की तरफ से आए यहाँ पे, कि DPT आपने कर रहे हो, भी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कि आप प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं अपनी कंट्री में, कि आपने फैकल्टी ज्वाइन किया हुआ है एज अ प्रोफेसर। कुछ आई थिंक महेंद्र सर हैं यहाँ पे, बलोचिस्तान चैप्टर के हैं, मतलब और भी काफ़ी, आई थिंक दिलीप भाई ने सब बड़े बड़े लोगों को बुला लिया यहाँ पे। तो अगर फैकल्टी हैं तो वेलकम, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स को डेवलप करने में, बट थोड़ा हमें बता दें कि क्या आपका प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने लेक्चर का पेश कर लूँ। ठीक है जी, अगर स्टूडेंट है तो थोड़ा स्लो चलेंगे, बट अगर आपको मोस्टली क्वेश्चंस हैं प्रोसेस के तो उसमें हम शुरू कर लेते हैं। नेप्टी जो है, NPTE, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हमारी अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, जो एप्टा हम बोलते हैं इसको, जैसे पाकिस्तान की है या इंडिया की है, वैसे ही इनका लाइसेंस एग्जाम का प्रोसेस होता है, नेशनल एग्जाम है ये। और भगवान की दुआ से, अल्लाह की दुआ से हमने ये मुकाम हासिल किया हुआ है कि NPT फाइनल फ्रंटियर इनकी वेबसाइट्स पे पहले नंबर पे ही आता है। उस पर लिखा होता है कि, मतलब वो इंडोर्स नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि वो कोई कमीशन नहीं है उनका, बट वो बता सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो बाकी 2-3 प्रोग्राम्स जो हैं वो अमेरिकन के ही चलते हैं यहाँ पे। एक रिव्यू बुक्स भी होते हैं स्कोर बिल्डर थेरेपी के, बट ये अकेला नॉन अमेरिकन प्रोग्राम हमारा है और काफ़ी इज्जत बख्शी उन्होंने कि हमें पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो भी मैं बोलूँगा, हमारी अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन की सपोर्ट से, उनकी वेबसाइट से जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सब इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो पहला सवाल ये होता है कि है क्या है नेप्टी, मतलब मैंने वेबिनार तो ज्वाइन कर लिया, मैंने जाना है अमेरिका, मैंने डॉलर्स भी कमाने हैं, कैसे पहुंचना है वहाँ पे, क्या एग्जाम है ये कोई थ्योरी एग्जाम है, ये कोई प्रैक्टिकल होता है, क्लिनिक होता है, क्या होता है। तो पहला जो स्लाइड होगा वो यही है कि NPT का फुल फॉर्म नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन, और जिसको भी प्रैक्टिस करना है, आप चाहे अपने कंट्री से आपने BPT करी हुई है, चाहे आपने मास्टर्स करी हुई है, चाहे आजकल DPT का ही सारा न्यू जनरेशन को मिल रहा है, और अगर आप US हैं, अमेरिका बॉर्न हैं, यहाँ के हैं रहने वाले, आपने यहाँ पे भी BPT करी हुई है, DPT करी हुई है, मास्टर्स करी हुई है और PhD भी करी हुई, कुछ भी करा हुआ है, तो हर एक इंसान को पेशेंट को टच करने से पहले ये NPT का एग्जाम पास करना पड़ता है। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसके बिना की कोई वैल्यू नहीं है। मैं US से आ गया, PhD कर ली, स्कॉलरशिप में मिल गई, नाम हो गया, अखबारों में आ गया, बट जब तक मेरा NPT नहीं क्लियर होता मैंने पेशेंट्स को नहीं टच करना। तो ये चीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं तुझे US बुला रहा हूँ, तू आके मेरे क्लिनिक में काम कर लेना, वो अच्छी बात है कि आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट यहाँ आने से पहले या यहाँ आके आपको एग्जाम देना ही होगा। वो NPT का जो हमारा फोकस होगा आज, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चीज जो है कि एग्जाम 4 बार ही होता है सिर्फ, ऐसा नहीं कि हर हफ्ते होता है। 2011 से इन्होंने रूल चेंज किया है, पहले थोड़ा इजीली मिल जाता था, बट अभी जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, यूजुअली लास्ट वीक में 28 को, 29 को, 27 को ये एग्जाम होता है 4 बार, और इसमें 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पूरे 5 घंटे का एग्जाम होता है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं, कोई शॉर्ट आंसर नहीं, कोई वो हमारा पुराना देसी हिसाब की 1 पेज भर दिया तो 5 नंबर मिल गए, 2 पेज भर दिया तो 10 मिल गए। तो उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, वो सारा मल्टीपल चॉइस होता है। उनमें से उन्होंने
50 क्वेश्चन जो है वो काउंट नहीं करते, और 200 क्वेश्चन टोटल काउंट होंगे, और 4 नंबर का एक होगा, 4 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन है, और 800 नंबर आपका टारगेट है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा एक ही अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट हुआ है पास, उनके 800 में 800 नंबर आए, इसका मतलब कि 100% स्कोर है उनका। जैसे हमारे 10वीं में 12वीं में होता है कि ये टॉपर्स हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी 800 में से 800 बड़ा अच्छा स्कोर माना जाता है, बट पासिंग स्कोर जो है वो 75% है सिर्फ। 600 आ गए अगर 800 में से, तो आपको लाइसेंस मिल गया। अगर आपका मिस हो गया पहली बार तो आप दोबारा दे सकते हैं, अगर फिर मिस हो गया तो आप 3 बार 1 साल में, और 6 दफा टोटल आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी जो फॉरेन ट्रेंड है, थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू होता है, थोड़ा पता नहीं होता कहाँ पढ़ना है, तो 25% जो नेशनल पास रेट है सिर्फ, ये 4 में से एक ही पास होता है। पर अगर कोचिंग ले सकते हैं आप, अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना थोड़ा पढ़ाई पहले शुरू कर सकते हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट 70-75% फर्स्ट रिस्पॉन्स में और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है। ओके, तो मैं पूछूंगा नहीं 800 किसको लेना है, क्योंकि चैट में तो सारे बोल देंगे कि मुझे भी 800 चाहिए, बट हम पहले प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि नेप्टी तक पहुंचना कहते हैं, मतलब कैसे आपको सारा प्रोसेस करना है, और फिर एग्जाम देंगे, फिर 800 में से 800 नंबर आएंगे और लाइसेंस मिल जाए। तो पहले प्रोसेस सीख लेते हैं कि आप इंडिया में हो, जहाँ नेपाल के कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपका मेजोरिटी है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, जब आप वेट कर रहे हैं, अभी वीजा नहीं लगा, जहाँ डीपीटी नहीं खत्म हुई, तो क्या चीजें शुरू हो सकती हैं। तो 3 चीजों पे हम फोकस करेंगे। पहला कि इवैल्यूएशन प्रोसेस, एजुकेशनल एक्विवेलेंसी, इसका मतलब कि आपकी डिग्री जो आप डीपीटी कर रहे हो और जो यहाँ पे मैं डीपीटी पढ़ा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसको हमने अमेरिकन बोर्ड को कन्विंस करना है कि हाँ, आप जो कोर्स ले रहे हैं वो यहाँ पे भी वैलिड होंगे। उसका मतलब होता है एजुकेशनल एक्विवेलेंसी। उसके बाद काफी स्टेट्स में टॉफल का एग्जाम भी जरूरी होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखनी होती है उनको, कि आप इंग्लिश में पेशेंट से बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं, आप इंग्लिश में उनके कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो जो 2 चीजें हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस और टॉफल, ये आप खुद थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेपर वर्क ही है ज्यादा। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरा अगले 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में मुझे जाना है अमेरिका एग्जाम देने या कनाडा एग्जाम देने, तो फिर उसको आप क्लासेस भी ले सकते हैं एनपीटी प्रिपरेशन की। तो वो वैलिड जो सीक्वेंस होगा कि पहले इवैल्यूएशन शुरू करें, फिर टॉफल का देखें अगर आपकी स्टेट में चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर आप कोचिंग प्रोग्राम का डिसाइड करें। काफी मतलब ऐसे होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुरू नहीं करी, एक्विवेलेंसी पाकिस्तान से प्लान बन गया है, वीजा आ गया है, जहाँ शादी हो गई है, यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ आके एजुकेशनल इक्विवेलेंसी शुरू करी है, 6 महीने लग गए, 9 महीने लग गए, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आ गया हूँ, और मुझे मेरे हाथ में कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि जो मेरी पाकिस्तान की डिग्री है, इंडिया की डिग्री, वो वैलिड ही नहीं है मेरे लिए अभी। मुझे वो पेशेंट को टच ही नहीं करने दे रहे, चाहे मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है पीछे से। तो ये टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन इवैल्यूएशन आप शुरू करें पहले, और उससे आपका टाइम सेव होगा, और दूसरा जब आप यहाँ आएंगे तो एग्जाम देने के लिए रेडी होंगे। कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक सज्जन पूछ रहे हो आप, जहाँ तो आकांक्षा आपके सारे आंसर कर देंगे। आकांक्षा हमारी फुल टाइम टीम मेंबर हैं एनपीटी फाइनल फ्रंटियर के लिए, और वो साथ में हमारे नॉन प्रॉफिट जो फैक्ट्स है वो भी, उसमें भी काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो वो साथ साथ आपके आंसर करती रहेंगी। बट अगर कुछ इश्यू हुआ कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप, मैं ऑडियो पे भी बता दूंगा। तो पहले स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, चलो 1 बाय 1 आपको कहाँ से शुरू होना है। पहला काम तो है कि ग्रेजुएट करो डीपीटी से, राइट। तो मैंने देखा अभी काफी स्टूडेंट्स भी थे ग्रुप में, आपने पोल में बताया हमें। तो अगर तो आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में खत्म हो रही है अभी डीपीटी, अभी टाइम है, तो सबसे पहला जो चीज होगी वो कि डीपीटी के लिए ग्रेजुएट करें। तो मैंने अभी तक जो भी बताया उसका सारा समरी मैं इसमें दे रहा हूँ आपको। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा 9 स्टेप का प्रोसेस होता है, और ये हमारी नॉन प्रॉफिट से ही इशूड है, और ये अप्रूव्ड है यूएस गवर्नमेंट से। तो अगर आपको देखना है तो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले कंसल्टेशन आप करें, किसी से भी कर लें, कोई सीनियर है आपका, कोई नोन है जिसने
अमेरिका जाना है, जहाँ जा चुका है, और नहीं अगर आपको मिल रहा कोई, तो हमारी जो फैक्ट्स की टीम है उसमें कंसल्टेशन आपको मिल जाएगी। लाइसेंस पीटी जो होंगे ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं, वो वॉलंटियर करते हैं अपना टाइम, वो आपको कंसल्टेशन दे देंगे, आपको बता देंगे कि ये आपका प्लान है, इतनी देर में आपको ये कोर्सेज करने हैं, जहाँ कोई एक्विवेलेंसी बनानी है, जहाँ प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद अपना आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है कि स्टेट सेलेक्ट करें। हमारा सिस्टम अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे टाइम भी सेम है सारी कंट्री में, इंडिया में टाइम सेम है, 7:30-8 बज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट वाइज काफी डिफरेंसेस हैं। अगर मेरे यहाँ पे 8 बज रहे हैं कैलिफोर्निया में, तो न्यूयॉर्क में नीरज बैठा हुआ उसके 11 बज रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ना थोड़ा सिस्टम उन्होंने अलग रखा होता है। जैसे न्यूयॉर्क है, उसमें टॉफल नहीं चाहिए। आप न्यूयॉर्क में आना है आपको, तो टॉफल नहीं चाहिए। अगर आप कैलिफोर्निया में आ रहे हो तो आपको टॉफल चाहिए। तो पहले एक स्टेट आप सेलेक्ट कर लें कि किस स्टेट में जाना है। अगर आपकी फैमिली रीजंस हैं, शादी होने वाली है, अगर आपका ग्रीन कार्ड फैमिली वीजा से आ गया है, जहाँ आपको पुराने किसी फ्रेंड ने बुला लिया कि हाँ मेरे पास आपके आके रहें, शिकागो में जाना है, मिशिगन में जाना है, तो सबसे पहले आप अपना कंफर्ट लेवल देखें, क्योंकि यहाँ आके आपको रहना होगा ना किसी के पास। अब होटलों में रहेंगे तो $200 देंगे, तो उससे तो आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। तो पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करें कि मुझे कहाँ पे जाना है, फिर अपन अपना इवेल्युएशन प्रोसेस शुरू करें, जो स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 के बाद अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी आ गई है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि फिजिक्स आपने नहीं ली हुई, या केमिस्ट्री आपने लैब नहीं ली हुई 12वीं क्लास में, तो फिर हमें आपको बताना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप वो करें, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैं अमेरिका आऊंगा तो वो क्लासेस पूरी कर लूंगा, क्योंकि वो आने तक तो फिर आपका फिर डिले हो गया ना। तो हम आपको बता देंगे कि ऑनलाइन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिससे आप कर सकते हैं, जहाँ कोई प्रोग्राम होगा हाइब्रिड टाइप, जिसमें आधा ऑनलाइन होगा आधा यहाँ के हो जाएगा। वो आप अपनी डेफिशिएंसीज अगर कोई आई तो उसको आप शुरू कर रहे हैं, उसको खत्म करके ही यहाँ पे वीजा प्रोसेस शुरू करें। वीजा प्रोसेस ऑब्वियसली कोई 100% श्योरिटी नहीं है। मेरे टाइम पे जब मैंने वीजा अप्लाई किया था, तो हम 4 दोस्त साथ में ही न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट में गए। चारों ने सारी सेम फाइल लगाई हुई थी। 2 का वीजा लग गया, 2 का नहीं लगा। 2 कैलिफोर्निया में आ गए, एक ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक इंडिया में वापस रह गया। तो ऐसे वीजा प्रोसेस के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करें, ऐसे उनको कन्विंस करें कि हाँ मुझे एग्जाम के लिए जाना है, या मुझे एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जाना है। तो वीजा प्रोसेस होने के बाद अगर आपका इवेल्युएशन आ गया है, तो स्टेप 7 जो होगा कि आपको एटीटी मिल जाएगी। एटीटी क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑथराइजेशन टू टेस्ट। ऑथराइजेशन टू टेस्ट मतलब आप एनपीटीई एग्जाम आके यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी पहले शुरू करना है, कि मेरा वीजा प्रोसेस शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि मैंने 6 महीने 9 महीने में चले जाना है एग्जाम देने, तो फिर आप हमारी कंपनी के साथ जो एनपीटी फाइनल फ्रंटियर है, अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि मैं क्यों कराऊं अपनी वैल्यूएशन? मेरे सीनियर ने कराई थी, मेरी क्लासमेट ने कराई है, उनका तो 2 ही कोर्सेज आए हैं कम, मैं वही कोर्सेज कर लेता हूँ, फिर मुझे पता लग जाएगा मैंने कौन सी डेफिशिएंसीज भरनी है। वो आइडिया ठीक है, बट जो एफसीसीपीटी हमारी जो इवैल्यूएशन एजेंसी होती है ना, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि आप लियाकत यूनिवर्सिटी से हो सारे तो सबका सेम ही डेफिशिएंसी डाल देंगे। उसका रीजन ये है कि उनके पास रिव्यूअर्स होते हैं, वो उसकी मर्जी है, उसने देखा कि फिजिक्स करी हुई है इसने 12वीं क्लास में, चल ठीक है ओके, अगर नहीं करी हुई तो फिर उसको करने दो दोबारा से। तो आप ऐसे डिपेंड ना करें कि मेरे सीनियर ने जूनियर ने बताया है किसी ने कि ऐसे करना है। आप थोड़ा अपना टेक्निकल वे से, ऑफिशियल वे से आप जाएं, फैक्ट्स टीम से पूछें, एफसीसीपीटी से पूछें कि कौन सी वैल्यूएशन मेरा कौन से डेफिशिएंसी आने वाली हैं, और कहाँ पे मुझे थोड़ा उस पे कोर्सेज लेने होंगे। ठीक है। और 9th स्टेप ये है कि आप लाइसेंस्ड पीटी बने, आप आके यहाँ पे जॉब करें। मैं अपनी प्रेजेंटेशन के एंड में थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे जॉब प्रोफाइल क्या होना चाहिए, कौन कौन सी जगह पे आप जॉब कर सकते हैं, क्या सैलरीज हैं, एक्सपेक्टेड खर्चा अगर आप कर रहे हैं आने से पहले तो आपको कितना वापस मिलने वाला है डॉलर्स के हिसाब से, जहाँ आपकी इंडियन या पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। बट ये स्टेप हमारे जो होंगे वो सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट होंगे अगर आपको अगले 1 या 2 साल में यूनाइटेड स्टेट्स में आके लाइसेंस एग्जाम देना है। चलो, बहुत अच्छा। अगर कोई और सवाल है तो पूछते रहें। आई अपोलोजाइज that this webinar is not in English. I know some of you are logging in from Philippines and some of you are logging in from Egyptian countries. I hope we can give you the same information by visiting our website, factspt.org. This website has all the state-by-state requirements, and it's free. Like, we don't have to pay for it. So please visit it, and then feel free to ask questions to me or Akansha in the chat. ओके, 2-3 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं चैट में, साथ साथ मैं कवर कर देता हूँ क्योंकि संडे नाइट आपकी आई डोंट नो कब तक लोग यहाँ पे रुकना चाहेंगे। तो एक तो सवाल है कि मेरी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। जहाँ तो 4 मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे मोस्ट इंडियन या पाकिस्तानी पीटीज हमारे आते हैं। पहली तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का रीजन है कि वहाँ पे टॉफल नहीं होता, तो इंग्लिश ना अवॉइड करने के लिए लोग चले जाते हैं। दूसरा, बड़ी डिवर्स स्टेट है, हर जगह का वसनीक वहाँ पे रहता है, तो उनको कोई इशू नहीं होता कि आप पाकिस्तानी हैं, आपकी डिवर्स बैकग्राउंड है, जहाँ दिखने में अलग है। दूसरा, मिशिगन में काफी लोग जाते हैं, मतलब स्पेशली अगर पुराने आपके कोई फ्रेंड्स जहाँ फैमिली मेंबर्स वहाँ रहते हैं तो मिशिगन में बहुत सारे हैं। एक स्टेट टेक्सास है। टेक्सास में आजकल थोड़ा ज्यादा इनफ्लो हो गया है। टेक्सास का रीजन ये एक है कि एक नेप्टी का पीटी का एग्जाम होता है फिजिकल थेरेपी का, एक पीटी ए का एग्जाम होता है जो फिजिकल थेरेपी असिस्टेंट बोलते हैं इनको। तो टेक्सास वाले जो है वो दोनों अलाउ कर देते हैं। जैसे कांशा टेक्सास की हैं, इन्होंने पहले पीटीए एग्जाम भी दे दिया, तो पीटी एग्जाम भी वही इवैल्यूएशन पे दे दिया, दोबारा नहीं खर्चा करना पड़ता। और चौथा जो है वो कैलिफोर्निया में काफी देसी पीटीज जो हमें मिलते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स भी उर्दू, हिंदी, पंजाबी स्पीकिंग होते हैं, तो फिर थोड़ा सा उनको केटर करने के लिए इंडियन पाकिस्तानी पीटीज की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। तो ये 4 स्टेट हैं। तो आप देखें कि वहाँ पे अगर कोई और भी है, अगर शिकागो में जाना है, बहुत सारे मैंने काफी साल स्पेंड किए हैं शिकागो में, काफी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ट्राई करें कि छोटी स्टेट में, इजी स्टेट में पहले आ जाएं, न्यूयॉर्क में आ जाएं, टेक्सास में आ जाएं, और फिर आप थोड़े सालों में, थोड़े महीनों में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो चलो थोड़ा अभी फोकस करते हैं कि कहाँ पे प्रिपरेशन करना है, राइट। अभी एक स्टेप बन गया, दिल से आवाज निकल जाती है कि हाँ मैंने जाना है, मैंने देखना है, अब मैं कैसे प्रोसेस करूँ ये, और मैंने कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, मुझे गाइडेंस मिले कोई। तो वो गाइडेंस के लिए आप थोड़ा एक चेकलिस्ट बना लें। पहली चेकलिस्ट ये बनानी होती है कि आप कब पढ़ रहे हैं। आप डीपीटी कर रहे हैं, आपकी खत्म होने वाली है, कि आप प्रैक्टिसिंग पीटी हैं, क्योंकि प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हो तो ऐसा नहीं है कि सारा दिन किताब पढ़ते रहोगे, राइट। पेशेंट भी देखने हैं, कोविड है थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, उसके बाद क्लिनिक खुल जाएगा आपका। तो थोड़ा एक प्लान बनाएं कि कितना पढ़ना है आपको। अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 घंटे रोज की इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के लिए, अगर आपको अच्छे स्कोर से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। तो किसी के लिए 2 से 4 घंटे बड़े आसान है। मतलब मैं अपने पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स को देखता रहता हूँ, रात के 3-3 बजे भी उनको मैसेज करते रहते हैं वो। तो कोई तो कहेगा कि मैं लेता हूँ 9 से लेके 12-1 बजे तक ही पढ़ना है, ठीक है। बट अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लिनिक में बहुत साल हो गए हैं, तो किताबें देखी नहीं कभी, कितने सालों से पड़ी हुई हैं कहीं पे साइड में, तो फिर वो 4 घंटे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो जिसके 2 से 4 घंटे अवेलेबल हैं जिसको, वो 3 महीने में रेडी हो जाएगा, जिसको नहीं है वो 6 महीने में हो जाएगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि आप रेडी नहीं हो सकते, पर अपना एक प्लान बनाएं कि कितना पढ़ सकते हो आप, और रेगुलरली। उसके बाद टेक्स्ट बुक्स जो अमेरिका में पढ़ाई जाती हैं, मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ था। मैं ऐसे नंबर 3 यूनिवर्सिटी में आ गया, मैंने अपने प्रोफेसर को आगे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे कौन सी किताब पढ़ाते हैं बायोमैकेनिक्स की। उसने कहा जी किशनर कॉल्बी। मैंने कहा वो तो मेरे बैग में है, मैं लेके आया हूँ साथ में। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा न्यूरो की कौन सी पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि रेड ओ सुलेवान, जो आई थिंक सब लोग पढ़ते हैं आजकल। तो ये किताबें सेम ही हैं, वो तब से ही सेम चल रही हैं। ओ सुलेवान है, मैगी है ऑर्थो की, एक पैथोलॉजी की किताब यहाँ पे गुडमैन यूज होती है काफी एग्जाम्स के लिए,
वो आपको PDF में भी मिल सकती है। तो एक मेरा मकसद जो था, डॉक्टर सतीश भोजवानी से भी बात होती है, आई थिंक फयाज अभी यहीं पे हैं, जहाँ दिलीप भाई हैं। तो किताबें बड़ी मुश्किल हैं जी, पता नहीं एग्जाम कहाँ पे होता है, कौन सी किताब से डालते हैं। तो एक मेरा जो मकसद था यहाँ आने का कि ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ता है। जो स्टाइल है पढ़ने का वो अलग है, बट किताबें वही हैं। वो 3 किताबें, किशनर, ओसुलेमान, मैगी, वो तीनों किताबें सेम ही हमारे डीपीटी प्रोग्राम में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में, जब मैं भी फाइनल ईयर डीपीटी को पढ़ाता हूँ, तो मैं भी अपने नोट्स मैगी से ही बनाता हूँ या किशनर से बनाता हूँ। तो वो ये किताबें 3 आपके लिए ज़रूरी हैं। और उसके अलावा रिव्यू बुक्स होती हैं, जैसे हमारी एमबीडी गाइड्स होती थी 7th 8th स्टैंडर्ड में। वैसे ही यहाँ पे 2 रिव्यू बुक्स कंपनीज हैं, स्कोर बिल्डर्स है एक और एक थेरेपीएट है। तो वो 80 से $100 के आसपास उनकी किताब होती है, उसमें नोट्स होते हैं और उसके कुछ प्रैक्टिस एग्जाम होते हैं। तो आपको अगर डिटेल चाहिए बुक्स की कौन-कौन सी हैं, जो कैसी दिखती है मैगी, अगर नहीं सुना हुआ अपने डीपीटी के टाइम पे, तो आप वो ये लिंक क्लिक कर लें, एनपीटी फाइनल फ्रंटियर बुक्स फॉर एनपीटी प्रिपरेशन। तो उस पे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन-कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। एक और चीज़ जो आपको प्लान करनी होगी, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है कि आपको जब आना है यहाँ पे, तो प्रैक्टिस एग्जाम पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पहली बार जाएँगे एग्जाम देने, 5 घंटे का एग्जाम है, 250 क्वेश्चन है, प्रेशर बड़ा है कि हाँ जी पास करना है, गलत नहीं होना चाहिए कोई। तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, जैसे कोई भी गेम के लिए, कोई भी इवेंट के लिए प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं। स्कोर बिल्डर्स और थेरेपीएट के 3-3 एग्जाम हैं। एक पीट एग्जाम होता है, जिसका मतलब होता है कि एफएसबीपीटी जो जो कंपनी एग्जाम बनाती है, वो अपने पुराने एग्जाम सेल कर देती है कि हाँ जी आप देख लें, ये 2015 में ये आया था, 2016 में ये आया था। वो करंट वाले नहीं बताते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको टेस्ट कर रहे हैं, बट पुराने एग्जाम वो बता देते हैं और वो आप परचेज कर सकते हैं। एनपीडी एफएफ के हमारे भी खुद के एग्जाम होते हैं। हमने भी लाइसेंस्ड अमेरिकन प्रोफेसर्स और पीटीज को हायर किया होता है कि आप हमारे लिए सिमिलर एग्जाम बना दें, तो वो भी एग्जाम आपके लिए अच्छे रहेंगे अगर आपको देखना है कि मेरा कहाँ पे प्रिपरेशन है, या मेरी कैसी परफॉर्मेंस है, रादर देन कि आप जाएँ वहाँ पे फेल हो जाएँ। इससे बेटर होता है कि आप प्रैक्टिस एग्जाम ना अच्छा करें, पता लग जाए कि कहाँ-कहाँ मुश्किल है, कहाँ वीकनेस है, और उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ साथ-साथ, टीम हमारी काफ़ी सपोर्टिव है, वो लिंक आपको यहाँ पे दे देंगे। चैट में भी मिल जाएगा, आप क्लिक कर सकते हैं बाद में भी। ओके, तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि एकेडमिकली भी मैं आपको समझा दूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, किताब है, बट सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती। ऐसा नहीं है कि किशनर के 1006 पेज हैं, तो सारे ही पढ़ने हैं। मेन चीज़ होती है कि जो मेन फ़ोकस पॉइंट्स हैं, जिस पे पूछा जाता है एग्ज़ाम में बार-बार, उस पे ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है। सारी किताब नहीं पढ़नी होती, सारी तो मैंने भी नहीं पढ़ी होंगी शायद। तो आप बुक्स को ले लें, पर उसका एक टाइम टेबल बनाएँ पहले कि मुझे कहाँ-कहाँ से किसने कितने क्वेश्चंस आने हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी सारी अवेलेबल है पब्लिकली। ये हमारा एक और लिंक आपको मैं भेज रहा हूँ चैट में। नीचे है ये एफएसबीपीटी का फ्री रिसोर्स में एनपीटी कंटेंट का एक लिंक है। उसमें पूरा होता है कि 250 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन न्यूरो के आएँगे, 60 क्वेश्चन मस्कुलोस्केलेटन के आएँगे ऑर्थो के, और 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली कार्डियो के आएँगे। तो उसका ब्रेकडाउन भी दिया होता है उन्होंने कि जैसे न्यूरो के 50 क्वेश्चन है, तो उसमें से 16 क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के आएँगे, और 16 क्वेश्चन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के आएँगे, 16 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली इंटरवेंशन के आएँगे। तो वो एवरेज थोड़ी ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट करती है, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, बट मेनली वही रहते हैं। दूसरा एनाटॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी अभी भी। जैसे फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन आपको मैंने बता दिया, तो सारा एनाटॉमी का ध्यान भी रखना होगा, फिजियोलॉजी का, जो-जो आपने डीपीटी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में करा होता है। क्रेनियल नर्व के टेस्ट हो गए, थोड़ी मूवमेंट पीएनएफ की पैटर्न हो गई, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जाम में टेस्ट होंगी, तो थोड़ा एक आइडिया बन जाएगा आपको कि ये चीज़ मैंने फोकस करनी है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपको बुक मिल गई जी ओसुलिवन की, जहाँ न्यूरो आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, आई थिंक वो लाल रंग की किताब होती है, बीडी चौरसिया, वो इंडिया और पाकिस्तान में भी यूज़ होती है। तो आपको सारी ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़नी शुरू कर दी आपने, तो वो उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। वो आपको अपनी कंट्री में एग्ज़ाम पास करा देगी। ब्रेकियल प्लेक्सिस का 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो पास करा देगी, बट
एनपीटी में आपको स्पेसिफिकली बड़ा फोकस तरीके से कुछ टॉपिक्स पे ही ज्यादा ध्यान देना होता है, सब नहीं पढ़ना होता। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स से हमने कंसिडर कर लिया कि न्यूरो, ऑर्थो जो मस्कुलोस्केलेटन कहते हैं यहाँ पे, और कार्डियोपल्मोनरी 3 मेन टॉपिक्स हैं। 3 मेन टॉपिक्स में मैंने कैसे उसको डिवाइड करना है, तो ये हमारा एक एनपीटी फाइनल फ्रंटियर का टाइम टेबल का एग्जांपल है। थोड़ा क्राउडेड है स्लाइड, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के पेज से ही ये ले लिया है। थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर मेन फोकस करें बीच में स्क्रीन के। तो ये जो जैसे अक्टूबर के एग्जाम जो दे रहे हैं लोग, उनको हमने बोला हुआ है कि जी पेरिफेरल नर्व इंजरीज पढ़ने हैं, और पेरिफेरल नर्व इंजरीज किशनर से पढ़ने हैं, कॉल्बी किशनर से। वो पूछेंगे कौन से पेज से पढ़ने हैं, तो पेज 386 से पढ़ने हैं। अच्छा जी, वो क्यों पढ़ने हैं? इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि ये मस्कुलोस्केलेटन को कवर करेंगे और इवैल्यूएशन पेज पे क्वेश्चन आएगा एक। तो इससे एक टाइम टेबल स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है कि यही टॉपिक्स हैं जो आप इसको सिलेबस की तरह चल सकते हो। जैसे हमारे डीपीटी बीपीटी में एग्जाम होते थे, तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले सिलेबस खोला। आई नो आप भी सुन रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं तो सर सारा साल पढ़ता था, बट ठीक है, मोस्टली हमारे जैसे ही होते हैं सारे, कि 2-3 महीने पहले ही पढ़ते हैं। तो आपने पहले खोला, सिलेबस खोला, फिर देखा कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़नी है, उसको फिर रीड करना शुरू किया। तो वैसे ही हमारा जो टाइम टेबल है वो सारा डिटेल में आपको बता सकता है कि किस किस टॉपिक पे कहाँ कहाँ से फोकस करना है और कौन सा क्वेश्चन आएगा उस पे। जैसे क्रेनियल नर्व हो गया सेकंड टॉपिक, वो फिर लिखा हुआ है कि आप उसको ओसोले-1 रेड बुक से पढ़ लें, पेज 116 117 और फिर 178 पेज। तो 3-4 पेज पढ़े रोज के, और आपकी न्यूरो कवर हो गई उसमें, और एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन पे जो क्वेश्चन आएगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही 60 डेज का टाइम टेबल है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 2 से 3 महीने आप पहले पढ़ना शुरू करें, क्योंकि 60 डेज का टाइम टेबल, इसको आप सिलेबस मान के चलें कि मैंने ये पढ़ना है। अगर मैं ये कवर कर लूंगा टाइम पे और कुछ प्रैक्टिस एग्जाम भी दे लूंगा, कुछ असाइनमेंट भी होंगी साथ में, तो मेरा ऑलमोस्ट 100% श्योर होगा कि मेरा एग्जाम पास हो जाए। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछते रहें साथ साथ कोई। हाँ जी, टाइम टेबल का ये जो स्क्रीनशॉट है आपके लिए अवेलेबल है, स्लाइड से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको अवेलेबल है। वो दिलीप सर को हमने सेंड कर दी थी पहले, अगर आपको चाहिए तो चैट में भी मैं अपलोड कर देता हूँ साथ साथ, अगर आपको देखनी है। अगर आपको इसका कोई पेड वर्जन लेना है, जैसे लेट्स से आपने इनरोल कर लिया है, कंपनी में आ गए, तो हमने बिल्कुल वाजिब $30 रखे होते हैं। $30 में आप आके अपना टाइम टेबल ले जाएं और आपको थोड़े आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आप लाइव क्लास में हैं, हमारी क्लासेस ले रहे हैं, तो क्लासेस में फिर हर चीज का एक फोल्डर बना होता है कि आज ये पढ़ना है, ये वाला फोल्डर क्लिक कर लेते हैं, इसमें वो पीडीएफ की किताब भी खुल जाएगी कि अच्छा किशनर के 6 पेज बोले हुए हैं, तो वही स्कैन करके उस पे हमारे थोड़े नोट्स भी होंगे, ताकि ये नहीं लगे कि हमने बुक से ले लिया किसी की। तो हमारे कुछ नोट्स भी होंगे, वो आप ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें, वो आपका सिलेबस माना जाएगा। ओके, तो एक चीज तो ये हो गई कि पढ़ना कितने घंटे है, कहाँ पे पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट हम लेते हैं हर साल। 250 के 4 बैचेस होते हैं। सारे लाइव क्लास में नहीं फिट कर सकते, कुछ स्टडी बंडल में चले गए, किसी ने अपना खुद सुन लिया, किसी ने यूनिवर्सिटी अकाउंट ले लिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से काफ़ी किताबें भी हमें डोनेट कर देते हैं या सेल कर देते हैं कि हाँ जी मैंने पढ़ ली है ये किताब, ये $100 की मैंने ली थी, तो ये आप 60 की ले लें वापस मेरे से। तो वो किताबें भी कई बार गैदर हो जाती हैं हमारे पास। तो जब मैं ऐसे बुक्स दिखा रहा था कि आपके पास किशनर है, आपके पास ओसुलिवान है, तो सब कुछ ऑनलाइन है। मैं अब इंडिया पाकिस्तान तो आपको देने नहीं आ सकता ना कि ये बुक ले लें, बट अगर आपको बहुत चाहिए ज़रूरी कि मुझे किताब से ही पढ़ना है और ये एडिशन अवेलेबल नहीं है, जैसे स्कोर बिल्डर की किताब पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो पिछले कुछ सालों से हमने जो सिस्टम रखा हुआ है कि जैसे पुराने प्रोफेसर्स दोस्त हैं, उनको फिर हम बुक सेंड कर सकते हैं। जैसे एवरीथिंग फयाज को भेजी थी थोड़े दिन पहले, तो सारा बुक का बंडल बना के 10-12 किताबें उनको पाकिस्तान नहीं शिप कर सकते, वो गुम जाती हैं रास्ते में, ऑनेस्टली इंडिया में भी नहीं पहुंचती। पर यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई बहन का डॉक्टर फ्रेंड है, कोई
आ रहा है जा रहा है, तो उसका एड्रेस हमें भेज दें आप। आई थिंक वो हम एंड में बता देंगे कैसे मैनेज करना है। तो फिर वो बुक्स जो है मैं वो शिप कर सकता हूँ, न्यूयॉर्क भेज दी, न्यूयॉर्क से फ्लाइट में वो ले गया, उसने जाके आपको कराची में दे दी, कराची में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और फिर हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब तो चेंज होगा नहीं, वो फिर आप फोटो स्टेट वाली दुकान पे गए, उसको बोला कि यार ये किताब आई है बाहर से, इसकी कॉपी बना दे, उसने बना दी, तो फिर आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो चीज मेरा काम जो होगा बुक्स प्रोवाइड करना, वो हमारी कंपनी का मिशन ही है कि नो वन शुड बी पुअर इनफ टू अफोर्ड एजुकेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपको अमेरिका आना है, पेशेंट ट्रीट करने हैं, लाइसेंस एग्जाम पास करना है, पर आपके लिए स्कोर बिल्डर के लिए पैसे नहीं है, तो फिर वो एक डिस्काउंटेड रेट पे जहाँ एक फ्री डोनेशन की तरह आपको मिल सकती है। ओके, तो थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं कैसे पढ़ना है। मतलब सारा कुछ ये नहीं होना चाहिए कि ख्याली पुलाव नहीं बनने चाहिए कि यहाँ करेंगे ये करेंगे वीजा आएगा वहां जाएंगे। थोड़ा एक सिस्टम भी रख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो एग्जाम में क्या आता है। तो ये इसके स्लाइड्स के 15 मिनट लगेंगे अभी मुझे, बट अगर आपको कोई और सवाल है तो मुझे पूछ लें, चैट में भी पूछ लें या ऑडियो पे भी पूछ लें, बट ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आई नो हम देसी हिसाब से ही थोड़ा लेट शुरू हुए थे, बट मैं ट्राई करूंगा कि टाइम से ही खत्म हो जाए, ज्यादा लेट नहीं रहने की जरूरत है आपको। ओके, एनपीटी की डिटेल्स पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बीडी जो रसिया है एनाटमी की, आपको एग्जाम देना है फाइनल एनाटमी का, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीनियर के घर जाएंगे, जहाँ उसको नॉक करेंगे, जहाँ मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, भाई क्या आया था पिछले साल, वो कहेगा ब्रेकियल प्लेक्सिस डाला था उन्होंने, तो तू ना रट्टा लगा ले फटाफट, मेरे पास नोट्स भी हैं पुराने, उसको देख ले। फिर हम घर जाएंगे, फिर हम सोचेंगे यार ब्रेकियल प्लेक्सिस तो पिछली बार आया था, इस बार लंबर प्लेक्सिस तो नहीं आ जाएगा, तो फिर हम लंबर प्लेक्सिस ही पढ़ेंगे उसको। बट यहाँ का जो माहौल है शुरू से ही, इवन थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी यूज करनी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि सबसे पहला लेवल होता है रिमेम्बर, जो हमारा रट्टा लगाना होता है ना, कि वो सारा याद भी कर लिया, C5 C6 ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये मीडियन नर्व है, ये रेडियल नर्व है, ये अल्नर नर्व है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट है, आप अभी भी लिख के दे देंगे मुझे, सारे उसके 6 पन्ने लिख के दे देंगे। तो वो हम रिमेम्बरिंग पे चलते हैं। दो के 2 × 2 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, वो हमने याद करा होता है पहले। अभी भी हम मुझे पूछ लें, मुझे सारा याद होगा कि 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है जी, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है, क्योंकि वो हमारा इनग्रेन्ड होता है, वो स्टाइल है हमारा पढ़ने का। यहाँ पे जो फोकस है वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे है, बट एनपीटी में ये दोनों चीजें पे फोकस नहीं होता। तो ये एक बड़ा शॉकिंग लगता है सबको कि यार मैं टॉपर हूँ अपने इंस्टीट्यूट से, मैं यूनिवर्सिटी से मैंने सबसे बेहतर नंबर लिए हैं, बट यहाँ पे आके मेरा पास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये फोकस करते हैं एप्लीकेशन पे, एनालिसिस पे, इवेल्यूशन पे और क्रिएटिंग पे। आप सोचिए, आप पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं तो पेशेंट को ट्रीट करने के टाइम पे नहीं सोचते इतना कि मैं इसकी ये वाली नर्व को यहाँ से ये नर्व रूट लेवल को यहाँ टच कर रहा हूँ, या ये वाला मैं स्पाइनल मोबिलाइजेशन करके ये वाली गैप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप ये सोचते हैं कि मैं इसको अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, पेशेंट को वैल्यूएशन कैसे कर रहा हूँ, मैं इनके लिए एक्सरसाइज कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, वो लेवल 3 एंड अबव हम कहते हैं। जैसे मेरे काफी दोस्त जहाँ आपके भी मे बी पाकिस्तान इंडियन प्रोफेसर जो होंगे यहाँ पे अमेरिका पढ़ाते, वो आपको बता ही सकते हैं कि जब वो एग्जाम बनाते हैं, उनको बोला जाता है कि एग्जाम बना दो हमारे लिए, तो बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होता है कि लेवल 3 से नीचे नहीं जाना, एप्लीकेशन के क्वेश्चंस ज्यादा रखने हैं। अच्छा, कैसे रखने हैं फिर, लेट्स से आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी, मीडियन नर्व है, सबको पता है मीडियन नर्व क्या होती है, आई होप। मीडियन नर्व में हमने याद भी करा होता है, सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली फिंगर्स को सप्लाई करती है, थिनर जो हमारा थंब का एरिया होता है वो वीक हो जाता है अगर मीडियन नर्व इंजर्ड हो। मसल्स भी आपने किसी जमाने में याद रखी होंगी कि जो सारी फ्लेक्सर्स वाली हैं वो मीडियन नर्व होती है, जो सारी एक्सटेंसर वाली हैं वो रेडियल नर्व होती है। बट अभी आपने अगर यूएस या कनाडा का एग्जाम पास करना है, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे ना कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ मीडियन नर्व, ना ही वो ये बोलेंगे कि टेल मी अबाउट सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन या मोटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व।
वो आपको ये बोलेंगे कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बताओ कि पेशेंट को क्या हो रहा है, एप्लीकेशन बताओ, एनालिसिस बताओ, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, कौन सी नर्व इंजर्ड है और कहाँ पे जाके मैंने इसको ठीक करना है। तो मैं आपको थोड़ा सिर्फ चेंज करने के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा। पोल मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए अगर चाहिए तो, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के इसका जवाब दें कि आपको क्या लगता है कि ये पेशेंट में कौन सी मोस्ट लाइकली प्रेजेंटेशन है। 1 मिनट का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 250 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में और 5 घंटे का एग्जाम होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट या 72 सेकेंड आपको लगते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, आप आंसर करें। मैं चैट में थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ साथ में, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैं साथ साथ टाइप कर दूंगा। आई थिंक काफी लोगों ने आंसर कर दिया है। ये कोई आपके लिए टेस्ट या क्विज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दिलीप ने बुलाया और पाकिस्तान के पीटीज को आता कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको एनपीटी में या कनाडा का पीसीए एग्जाम है उसमें मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन थे चैट में कि पीटीए का सिस्टम भी सेम है, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी गाइडेंस और दे दूंगा कि वीजा कहाँ से लेना है, जहाँ कैसे प्लान करना है। और मेरे कुछ पुराने दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं कि भाई तुझे पंजाबी उर्दू भी बोलना आता है, तो ऑब्वियसली मेरी आई थिंक शक्ल से लगना चाहिए थी कि मुझे वो भाषा आएगी अभी भी। ऐसे नहीं होता कि अमेरिका आपके भूल जाते हो। आई थिंक मोस्टली लोगों ने इंग्लिश में ही बोलते सुना होता है। तो जैसे मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इनवाइट किया आप लोगों ने। चलो अभी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया, थोड़ा मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो पेशेंट का ना, ये इसको फ्लिप कर दिया उन्होंने। हमें ये नहीं पूछा कि मीडियन नर्व क्या होती है, ये पूछ लिया कि पेशेंट जा रहा था, गिर गया स्टेयर केस से, इंजर्ड हो गया आर्म भी और हैंड भी, और अभी पेशेंट लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो अगर हम पोल भी मैं एंड कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे किसने क्या आंसर किया। बट हमें मोस्टली फर्स्ट थिंग देखनी थी कि ये नर्व कौन सी गई है, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, कौन सी नर्व इंजर्ड हुई है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन थे, एक अल्नर क्लॉ फिंगर पहला ऑप्शन था, फिर रेडियल हैंड, और फिर रिस्ट ड्रॉप, और फिर लैक ऑफ ऑपोजिशन एंड इनएबिलिटी टू ओपन डोर्स। तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि मीडियन नर्व हमें देखनी थी कि मीडियन नर्व इंजर्ड हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे ये मुश्किल हो गया, ऐसे तो मैं नहीं पास होऊंगा, तो बट आप ये याद रखें कि अ, आपको कभी ना कभी तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कहीं थर्ड ईयर में किसी ने तो पढ़ाई होगा कि मीडियन नर्व ये है, और मीडियन नर्व पे ये मसल्स सप्लाई होती हैं, और मीडियन नर्व में अबडक्टर जो थंब का है और फ्लेक्सर जो फिंगर का है, वो दोनों मसल्स जो हैं वो आपकी चली जाती हैं। तो अगर वो चली गई, मीडियन नर्व अगर इंजर्ड हो गई, तो फिर आपका पहला आंसर भी गलत हो गया, अल्नर क्लॉ हैंड। दूसरा आंसर रेडियल नर्व है, वो भी गलत हो गया। तीसरा आंसर रिस्ट ड्रॉप है। वो कब होता है, जब रिस्ट, अगर रेडियल नर्व मोस्टली एक्सटेंसर को सप्लाई करती है आपके हाथ के पीछे, अगर वो कट जाती है तो फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता ना, तो हाथ आपका गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर वो ड्रॉप हो गया तो फिर वो भी रेडियल नर्व का था। अब एक ही ऑप्शन बची है कि वो लैक ऑफ ऑपोनेंस
और इनएबिलिटी टू ओपन डोर्स। तो ये आंसर जो आपका वो करेक्ट होगा, बट वो करेक्ट तब होगा एग्जाम में अगर आपको मीडियन नर्व का थोड़ा आइडिया था कि कहाँ पे जाती है, अगर आपको पता था कि मीडियन नर्व का फंक्शन क्या है। अगर आपको याद ही नहीं रहा कि मीडियन नर्व कौन सी है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। काफी लोगों ने आप पोल में देख सकते हैं 50% अप्रोक्सीमेटली आंसर करा है डी करेक्ट आंसर, और बाकी अबाउट 25% लोगों ने रेडियल क्लॉ हैंड बोला है। रेडियल क्लॉ हैंड जो है वो रेडियल नर्व के साथ होगा। एक और ट्रिक होती है कि रेडियल नर्व को आपको पता है कि रिस्ट ड्रॉप है, तो दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, क्योंकि बी और सी सेम ही चीज कह रही है ना, तो दोनों के पास नहीं जाना। तो वो दोनों बी और सी गलत होगी और डी रह गया जो आपका करेक्ट है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। आई नो काफी लोग फोन से सुन रहे होते हैं जूम की क्लासेस आजकल, तो मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, बट मैंने समरी आपको दे दिया। बट अगर इंग्लिश में आपको चाहिए तो patient fell from a staircase and suffered injuries to forearm and hand. On PT examination, patient reported loss of muscle strength in abductor pollicis brevis and flexor pollicis brevis. What is the most likely presentation? And median nerve जो होती है that supplies abductor pollicis brevis and flexor pollicis brevis. तो ऑप्शन डी जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है, lack of opposition and inability to open doors, वो करेक्ट होगा। ओके, तो एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है। आपने अभी देखा कि मैंने मीडियम नर्व का क्वेश्चन दिया, 50% लोगों से नहीं याद रहा। तो जब आप पढ़ते हैं ना, अपना प्लानिंग करेंगे पढ़ने की, तो अपने टाइम टेबल को या अपनी प्रिपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड कर लें। वो सारे पीटी हैं यहाँ पे। हम लोग जब फिजियोथेरेपी भी करते हैं तो यही बोलते हैं ना कि पहले वार्म अप कर लो, फिर आप थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लो। वार्म अप में क्या करते हैं, बेसिक्स पे फाउंडेशन पे ध्यान देते हैं, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लिए। जब थोड़ा टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो फिर हम सेकंड फेज में चले गए, वहां पे थोड़ी बुक भी रीड कर ली। कोई पता है कि स्ट्रोक के क्वेश्चन आने हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के आने हैं, वो पढ़ लिए। उसके साथ साथ थोड़े प्रैक्टिस एग्जाम देने शुरू कर दिए। तो सीक्वेंस में चलोगे ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि मुझे कुछ आता नहीं है। क्योंकि अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं और से भी, तो आपको पता होगा कि मीडियन नर्व आनी है, जनरल नर्व आना ही है क्वेश्चन, उस पे टाइम टेबल में भी देखा होगा। तो जब आएगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर आप पहले ही दिन से बोलोगे कि मैं प्रैक्टिस एग्जाम ले रहा हूँ थेरेपी एड का, स्कोर बिल्डर का, तो आपका स्कोर कम आएगा, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है वो लास्ट वाला, कि कैसे फाइनल पुश करना है। वो तब करना है जब आ गए अमेरिका, जब पता लग गया कि मेरा वीजा लग गया, मेरी फ्लाइट है, मैंने यहाँ जाके रहना है, मैं 10 दिन के लिए 2 महीने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो वो जो फाइनल पुश है, वो रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो फिर वो जो मीडियन नर्व पड़ी हुई है, वो आपने 3 महीने पहले पढ़ी हुई थी, वो फिर भूल जाएगी एग्जाम में आके। आई नो सबकी मेमोरी अलग अलग होती है, बट वो रिवीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई होप सबको थोड़ा फेमिलियर लगे कि क्या टॉपिक है। वो होता है क्रेनियल नर्व्स का। क्रेनियल नर्व्स, मैं जब नया नया आया था ना, तो मुझे न्यूरो की क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट थे तब के, मेडिकल स्कूल में क्लास हो रही थी, अकेला ही मैं, ब्राउन कह लें या देसी कह लें, था। तो उसने कहा कि क्रेनियल नर्व कैसे याद रखते हैं। मैंने कहा जी SO4 LR6। किसी को पता है इसका मतलब, याद है किसी को? तो चैट में बताएं मुझे, इंटरेक्शन कर सकते हैं कोई ऐसे में। मैंने आपको बोला ये क्विज नहीं है, कोई डिस्कशन ही है हमारे लिए। तो कौन बता सकता है मुझे LR6 और SO4 का क्या मतलब होता है? एक आंसर आ गया, सुपीरियर ओब्लिक, शाबाश। तो क्रेनियल नर्व्स हमें भी आने चाहिए, अमेरिकन को भी आने चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने कहा जी सुपीरियर ओब्लिक 4 और लैटरल रेक्टस 6। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से निमोनिक बना ले तूने। मैंने कहा जी मेरे प्रोफेसर ने बताया होगा, मैंने याद रख लिया। तो एक लड़की पीछे से खड़ी हुई, वो पाकिस्तान की थी, पर वो यहाँ पे आई हुई थी 9 साल की।
तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने भी डीपीटी पाकिस्तान से करी हुई है, मुझे SO4 LR6 का मतलब पता है। तो तब से मेरे स्कोर थोड़े अच्छे थे, मेरा परसेंटेज भी टॉप में आता था। तो मेरे जितने भी मेडिकल स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो अभी भी मुझे SO4 LR6 याद कराते हैं कि वो आपने याद हमें बोला हुआ था, आप याद हो गया। तो जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ है ना उसको आप यूज करें यहाँ पे आके। क्रेनियल नर्व्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 6 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप उसको यूज करें, याद रखें। ऑक्यूलोमोटर कौन सी होती है, ट्रोक्लियर कौन सी होती है, मैं वो तो लेक्चर नहीं दूंगा आपको न्यूरो का, बट नोट्स बनाएं। जो जो चीजें आपने रखी हुई हैं अपने नोट्स में, स्कूल में से, अपने जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीखा हुआ है, जो निमोनिक आपने बनाए होते हैं, जहाँ जो अपनी लैंग्वेज में भी सीखे होते हैं कि कौन सी नर्व 1 है, 2 है, वो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, जहाँ सेंसरी नर्व कैसे याद रखनी है। ये जो लिखा हुआ है सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर, तो ऐसी चीजें आप यूज करें, बट आपको फिर उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, फिर से लेट्स से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो देखिए अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं है ना, ये नहीं लिखा हुआ कि 12 क्रेनियल नर्व बता दें और उसके फंक्शन बता दें, जहाँ ये क्रेनियल नर्व पे 3 पेज का लिखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन्होंने फिर फ्लिप कर दिया। फ्लिप का मतलब कि आपको प्रॉब्लम बता दी, ये नहीं पूछा कि क्रेनियल नर्व 2 में 3 में प्रॉब्लम क्या होगी पेशेंट की, प्रॉब्लम बता दी, उसको मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर दिया कि इसका आंसर क्या है बताएं आप। तो ये एक और पोल कर लेते हैं, ये लास्ट है, मैंने ज्यादा नहीं आपका टाइम लेना, दो ही क्वेश्चन मैंने सोचे थे करने के, और ये खत्म कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा मैं आपको और प्रोसेस एक्सप्लेन करके जाऊंगा। चलें देखते हैं कौन आंसर करता है। मैंने पोल जो है ना एनोनिमस रखी हुई है। एनोनिमस का मतलब कि गुप्त, आपको नहीं पता कि कौन क्या आंसर कर रहा है। तो आपको अगर नहीं भी लग रहा कि आंसर पता है, नहीं पता, तो एक आंसर ट्राई कर लें, कुछ पता नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नेप्टी एग्जाम में ना, एनपीटी एग्जाम में। आप जब भी आंसर करेंगे जहाँ तो 0 आएगा, जहाँ 4 आएंगे, नेगेटिव नहीं जाता। तो ट्राई करें, देखते हैं कितने लोग सबमिट करते हैं इस बार आंसर। पोल में है आपको लिखा हुआ, अगर पोल में आंसर कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। तो मैं 1 मिनट आपको दूंगा इसके लिए। चलें आई थिंक डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि पेशेंट का आई एग्जामिनेशन हो रहा था, उसको डबल विजन का प्रॉब्लम था। और डबल विजन का मतलब होता है कि आपकी उसकी आईसाइट चेक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझे डबल विजन दिख रहा है। पीटी फाइंड्स की पेशेंट वो फिंगर्स फॉलो कर रहा है वर्टिकली अप एंड डाउन। वर्टिकली अप एंड डाउन का मतलब कि ऊपर नीचे जब उंगली कर रहे हैं तो वो देख रहा है आपको कि हाँ कहाँ जा रही है। बट जब उनको बोला कि नीचे देखो, डाउन एंड इन, अपने नोज की तरफ देखो, नाक की तरफ, तो कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होगी? अभी क्रेनियल नर्व 2 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि एग्जाम क्यों थोड़ा चैलेंजिंग या मुश्किल लगता है, क्योंकि हम लोग यूज टू होते हैं कि SO4 है जी, SO4 क्या करती है? सुपीरियर ओब्लिक है। सुपीरियर ओब्लिक तेरा काम क्या है? सुपीरियर ओब्लिक का काम है डाउन एंड इन देखना। तो मैंने आपको वो नहीं पूछा, मैंने आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि सुपीरियर ओब्लिक के 3 फंक्शन बताएं, जहाँ सुपीरियर ओब्लिक का फुल फॉर्म और उसका फंक्शन और उसकी डिविएशन बताएं। क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया, सवाल को जवाब बना दिया, जवाब को सवाल बना दिया। तो उसमें पूछा क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो डाउन एंड इन जो होगी ना, वो क्रेनियल नर्व 4 होगी हमेशा। आई नो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6 होगी या 2 होगी, तो कोई हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको आंसर आता हो करेक्टली, बट बेसिक्स पे जो
फोकस करना बहुत जरूरी है। क्रेनियल नर्व 2 जो होगी वो ऑप्टिक नर्व होगी, उसके लिए हमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स देखना पड़ेगा, उसको हम नहीं पिक करेंगे। जहाँ क्रेनियल नर्व 3 होगी तो उसमें ऊपर नीचे वर्टिकली नहीं देख सकते, वो अप एंड डाउन भी अफेक्टेड होगा। और जो LR6 जो हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व 6, वो होगी लेफ्ट एंड राइट। तो अप एंड डाउन ऊपर नीचे 3, लेफ्ट राइट बाएं दाएं हो गई जो आपकी 6। और अगर नीचे करनी है, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जो उतर रहे हैं सीढ़ियां, तो नीचे देखना है आपको, तो फिर आपकी क्रेनियल नर्व 4 काम आती है। सुपीरियर ओब्लिक जो क्रेनियल नर्व 4 सप्लाई करती है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन जो लिखा हुआ यहाँ पे बी। तो मैं स्क्रीन पे भी टाइप कर रहा हूँ, अगर आप बाद में भी सुन रहे होंगे तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आई थिंक कुछ लोग नाराज हो गए मेरे से, है ना, ये क्या, तो ये तो फ्री वेबिनार था, संडे नाइट, तो ये सवाल जवाब पूछ रहे हो, आप क्विज कर रहे हो। तो थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ आपको मैं। मेरे टीम मेंबर एक बड़े स्पेशल हमारे लिए हैं यहाँ पे, नीरज तनकारिया। नीरज, अगर आप यहाँ पे हो तो यस ऑडियो ऑन करें। सुनते हैं, नीरज ने हमारे आई थिंक लास्ट ईयर अबाउट 100-120 स्टूडेंट्स को कोच किया है, हिंदी और उर्दू में पढ़ाते हैं। तो थोड़ा इनसे भी सुन लेते हैं कि क्या बेस्ट होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बाकी जो वीजा के क्वेश्चन है, सैलरी के हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, बट नीरज सर, गो अहेड। Thank you, sir. So, greetings to everyone. Since webinar is in Hindi, let me speak in Hindi. So, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग जहाँ पे भी होंगे वो खैरियत में होंगे। So, मेरा नाम नीरज टंकारिया है और मैं बेसिकली इंडिया से हूँ, गुजरात से हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ। न्यूयॉर्क में मैं आउट पेशेंट क्लिनिक में फुल टाइम एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट वर्क करता हूँ। साथ साथ मैं एनपीटी कोचिंग भी करवाता हूँ, एनपीटी कोच हूँ। तो मेरे 2 बैचेस रहते हैं, एक होगा हिंदी और एक है इंग्लिश। तो अगर मेरा इंडिया से यूएस का सफर बहुत ही लंबा रहा हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मैंने बेसिकली बैचलर इंडिया से किया, उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड से मास्टर्स किया 3 इयर्स। वहाँ पे मैंने 3 इयर्स वहाँ पे स्पेंड किया, वंडरफुल स्टे इन न्यूजीलैंड। 2 इयर्स मास्टर के बाद 1 ईयर मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में एज ए रिहैब कोऑर्डिनेटर एक्सपीरियंस गेन किया। जब 2014 में यूएस में आया और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ यूएस में एज अ फिजिकल थेरापिस्ट, और 2017 में मैंने एग्जाम क्लियर किया, लाइसेंस लिया, पीटी लाइसेंस लिया, और तब से लेके अभी तक और फ्यूचर में भी आगे भी करते रहेंगे। आगे भी हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते रहेंगे। तो वो जर्नी आई थिंक कुछ बहुत ही अलग ही था कि जब मेरी मुलाकात डॉक्टर भूपेंद्र सर के साथ हुई ड्यूरिंग कोई एक इवेंट था यहाँ पे न्यूयॉर्क में, एक हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। सो वो इवेंट के दरमियान जब मेरा मुलाकात डॉक्टर भूपेंद्र के सर के साथ हुआ, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया, बहुत आइडियाज एक्सचेंज किए, और हमने जब मुझे पता चला डॉक्टर भूपेंद्र सर के साथ बात करके कि फॉरेन ट्रेन स्टूडेंट का पासिंग रेशियो क्यों कम होता है, तो बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे। तो आई थिंक जो कॉमन रीजंस होंगे, तो एक तो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लैक होता है मेनली, क्योंकि तुम कंट्री चेंज करते हो। फिर होता है एक लैंग्वेज बैरियर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि समझ में उनको इजीली आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से आई थिंक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें समझने में थोड़ा वो टाइम लेते हैं। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो वो सारे चीजों को लेके हमने काम करना स्टार्ट किया, दोनों ने साथ में मिलकर पूरे टीम ने वहां पे काम करना स्टार्ट किया वो सारे टॉपिक पे। और हमने सोचा कि क्यों ना मैं ही क्लासेस करूँ हिंदी में, अपनी एक नेटिव लैंग्वेज में मेरे क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट, हमें हर लोगों को पता है। तो मैंने भी अपने क्लासेस हिंदी में क्लासेस लेना स्टार्ट किए मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। वो लोग सारे लोग पास हो गए, उन्होंने किसी और को बताया, और वो चेन बढ़ता गया। और फिर वहां से वो बाद में एक पासिंग रेशियो भी बहुत ही हाई होने लगा। तो जितने भी मेरे हिंदी स्टूडेंट्स या फिर जो उर्दू के और पाकिस्तानी फ्रेंड्स मेरे बहुत है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेरे अभी के बैच में भी बहुत सारे रहेंगे जो अभी अटेंड भी कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। और तो वहां से पासिंग रेशियो ज्यादा हाई होने लगा, क्योंकि ये सारे रीजन पे हमने वर्क करना स्टार्ट किया। तो मेरा एक ही मशवरा रहेगा आप लोगों से कि अगर आप जो भी करो वो दिल से करो, 100% दो, चाहे आप वो यूएस की एग्जाम प्रिपेयर करो या फिर कनाडा की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करो, गाइडेंस लो, एक्सपर्ट को आप बताओ,
मेंटर्स को आप पूछो कि क्या वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, क्या एक प्रोसेस होना चाहिए। 5 लोगों के, आपके 5 फ्रेंड्स को पूछने से अच्छा मैं एक एक्सपर्ट को वहाँ पे पूछूंगा कि जहाँ से मुझे क्लियर पाथ में पता चले। ओके, मुझे कोई वहाँ पे मिसगाइड मत करे और मेरे वहाँ पे टाइम, अल्टीमेटली टाइम सेव हो जाए। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऐसी एग्जाम्स क्लियर करने में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या स्टडी करना है, क्या नहीं स्टडी करना है, और स्पेशली क्या नहीं स्टडी करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर वहाँ पे रह के आप यहाँ की एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए, तो एक सजेशन रहेगा, एक मशवरा रहेगा कि आप अपने बेसिक को स्ट्रांग बनाएं, आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। जैसे मसल एक्शन होगा, 9 रूट्स होंगे, 9 सप्लाई रहेगा, वो सारी चीज़ों को आप वहाँ पे रिव्यू करें। काफ़ी टाइम, ज़्यादातर आप रिव्यू करें तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या उसमें क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज रहते हैं। और जो भी आपके दरमियान, वो सारी प्रोसेस के दरमियान अगर आपको कहीं पे भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं, कोई कंसर्न्स रहते हैं, आपको कहीं पे पता नहीं चला कि एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, एनपीटी के प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, क्या स्टडी करना चाहिए, उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। मुझे आप बताओ, आप किसी टीम मेंबर को बताओ, कोई एक्सपर्ट को बताओ, आप वहाँ पे, आपको पक्का वो वहाँ पे वो हेल्प करेंगे, क्योंकि हम आसान कर देते हैं सारी चीज़ों को। और वही हमारा एक विजन है कि जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स और हमने जो सफ़र किया है, वो बाकी लोग वहाँ पे सफ़र ना करें, वो बाकी लोगों को वहाँ पे वो प्रोसेस आसान कर देंगे हम। तो शायद से वो ये सारे आप अपने प्रोसेस के लिए वर्क करना स्टार्ट करो अच्छी तरीके से। वहाँ पे आप फेथ रखो, और कोई भी गाइडेंस के लिए आपको हेल्प चाहिए तो मैं बैठा हूँ, सर बैठे है, और पूरे कोई भी टीम मेंबर को आप अप्रोच कर सकते हो। तो बाकी आप ये पैंडेमिक सिचुएशन में अपने हेल्थ का ख्याल रखें, और टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, आप जो भी करें उसके लिए गुड लक, एंड थैंक यू डॉक्टर सिंह सर, एंड थैंक यू दिलीप जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मिलते हैं सर, बात करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई थिंक नीरज ने मेन चीज आपको बता दी कि दिल से करें जो करना है। ऐसे नहीं कि मैंने शुरू करना है, मैं करता हूँ, देखता हूँ, हो जाएगा, वो जाएगा पहले मेरा कलीग तो मैं चला जाऊंगा, वो जाके वहां बताएगा कि कैसे होता है। तो ऐसे प्रोसेस में अपना टाइम नहीं खराब करें। अगर आपको लगता है कि अपना फ्यूचर कैरियर एडवांस करने के लिए आपको यूएस या कनाडा जाना है, तो हमें बताएं। हमारा यही मिशन है कि मोर एंड मोर जितने भी लोग जेन्युइनली आना चाहें तो आके ज्वाइन करें, पेशेंट केयर में हेल्प करें, और अपना थोड़ा नाम भी रोशन करें कि हाँ जी, मैं यहाँ यूएस और कनाडा में मेरे क्लिनिक्स हैं जहाँ मैं टीच करता हूँ, जहाँ मेरी रिसर्च चल रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा भी होपफुली आपको ब्रेक मिल गया। आपने 2 क्वेश्चन करे। एक सवाल आई थिंक चैट में जो पूछ रहे थे कि और कहाँ से मैं क्वेश्चन करूँ ट्राई। तो ये जो वेबिनार्स होते हैं ना, अगर हमें ऑफिशियली करना होता इंग्लिश में प्रॉपर, मैं भी टाई लगा के आता, हमारी टीम भी सारी आती, हम लोग चार्ज भी करते दिलीप भाई से हजारों डॉलर, बोलते भी इंग्लिश में, फॉर्मेलिटी भी रखते, बोलते नहीं कि पीडीएफ स्कैन कर लेना फोटोस्टेट कॉपी पे जाके। तो ये दिल से जो वेबिनार है, इसमें पैसे वाला जो काम है ना, वो नहीं जरूरी होता। ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लें क्लास, वो अल्लाह की मेहरबानी से बड़े हजार हजार स्टूडेंट आते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर बने हुए हैं, गाड़ियां हैं। मेरा पर्पस है कि फ्री एजुकेशन या अफोर्डेबल एजुकेशन आपको देनी है। तो अगर आपको कोर्स सोचने हैं, ज्वाइन करने हैं, वो बात की बात है। पर अगर आपको जुनून बन गया कि हाँ जी मैंने जाना है, मैंने करना है, मैं देखूं सही क्या कराते हैं एनपीटी वाले, अमेरिका में क्या आता है एग्जाम में, तो कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं यहाँ पे लिखे हुए आपके लिए। एक तो फ्री क्विजलेट है जो वेरीफाइड है हमारा फ्रॉम द क्विजलेट कंपनी। तो क्विजलेट में क्या होता है कि आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपको पूछेगा कि फ्री क्लास ज्वाइन एक्सेस करना है, तो आप सिर्फ ईमेल दे दें अपना और आपको एक्सेस मिल जाएगा। और उसके क्वेश्चंस होंगे, जैसे ऑर्थो के 46 क्वेश्चन होंगे क्विज टाइप। पहले क्वेश्चन आएगा, आप उसको क्लिक करोगे, आंसर करेंगे, और उसका पेज पलट जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा दूसरे पेज पे। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको रेगुलरली कुछ चाहिए तो हमारी ऐप होती है आजकल, तो हर चीज़ की ऐप बनी हुई है। तो आईफोन पे, एंड्रॉयड पे, गूगल पे एनपीटी फाइनल फ्रंटियर ऐप है। ये लिंक मैं पोस्ट करा देता हूँ आपको चैट में अगर आपको चाहिए तो। और फिर इंस्टाग्राम भी होता है सबका, अगर आपको लगता है वहाँ पे कंटेंट है
अमेरिकन कैनेडियन एग्जाम का हम डालते रहते हैं। और हमारा एक फ्री फेसबुक ग्रुप है जिसमें आई थिंक अबाउट 19-20 हज़ार पीटीज अभी हो गए हैं। वो प्राइवेट ग्रुप है, वो दिखता नहीं है, तो कई बार लगता है कि हम इतना पॉपुलर नहीं है हमारा ग्रुप जहाँ पोस्ट नहीं दिखती, तो हमने वो थोड़ा उसको क्लोज रखा होता है। अगर आप ज्वाइन करें, मुझे बता दें कि मैं पीटी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ, किसी भी कंट्री से हूँ, सिर्फ अपना नाम जो प्रोफाइल आप यूज करें और सिर्फ एक यस क्लिक कर दें कि मैं पीटी हूँ, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। और आप उसमें सारे रोज 3 क्वेश्चन हमारी टीम डालती है। एक अमेरिकन रखा हुआ हमने पीटी चेस टेलर करके, एक इंडियन लड़की है यहाँ की वृंदा कपाड़िया, और फिर आकांक्षा मैम तो आपके पास हैं यहाँ पे। तो फिर हम क्वेश्चन भी डालते रहते हैं और हम आंसर भी उसके देते रहते हैं आपको रोज। तो आप फ्री इंफॉर्मेशन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और 2-3 सवाल है कि हाँ जी वीजा कौन सा लूँ मैं? तो पहले तो डिस्क्लेमर है कि मैं वीजा ऑफिसर नहीं हूँ, बट इतने सालों से आप जब दूसरी कंट्री में जाते हो, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक समझ लग जाती है कि क्या कर सकते हैं वीजा पे, क्या नहीं कर सकते। तो ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ स्लाइड्स पे आपकी, इसको इत्मीनान से ध्यान से पढ़ें अगर आपका प्लान बन रहा है। विजिटर वीजा होता है सबसे पहला, एक स्टूडेंट वीजा होता है, एक H1B होता है, एक H4 होता है और एक ग्रीन कार्ड होता है। तो मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। विजिटर वीजा जो होता है कि आपने अपनी एम्बेसी जाना है कराची में या इस्लामाबाद में, तो उनको बोलना है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वो आपको जाने देंगे 6 महीने के लिए, 10 साल का वीजा भी दे देंगे, बट आप यहाँ के काम नहीं कर सकते। अगर आपने इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरा वहाँ पे कोई फ्रेंड है, उसने बोला मेरे क्लिनिक में आ जाइए, अल्ट्रासाउंड कर दिया कर, $15 ले लिया कर, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि काम करना अलाउड नहीं है। दूसरी चीज है F1 वीजा, जैसे नीरज ने बताया, काफी लोग जैसे मैं हो गया एग्जांपल आपके लिए, आबिस था अभी यहाँ पे, वो भी स्टूडेंट वीजा पे आया था। तो F1 वीजा जो है वो एक सेफ वीजा माना जाता है, क्योंकि उस पे आप लंबे टाइम के लिए आ सकते हो। वो आपका एंट्री पॉइंट है 5 साल के लिए, पर उसके लिए आपको मास्टर्स या PhD करनी पड़ेगी। वो एक सबसे कॉमन वीजा हमारा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ के रास्ता खुल जाता है। किसी ने बता दिया NPT कैसे पास करना है, किसी ने लाइसेंस दिला दिया, किसी ने जॉब दिला दी। तो उसमें ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट टाइम आप काम नहीं कर सकते। 20 घंटे आप ऑन कैंपस जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो वहां पे आप जॉब कर सकते हैं, पर बाहर नहीं काम कर सकते। टैक्सी नहीं चला सकते, होटल रेस्टोरेंट में जॉब नहीं कर सकते, वो सारी चीजें वो ऑफ कैंपस मानी जाती है। उसके बाद H1B वीजा होता है। उसका मतलब होता है कि किसी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया, किसी ने कह दिया कि 3 साल के लिए मैं तेरे को $70,000 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम आपको पे करेंगे, और उसके लिए आपको थोड़ी वैल्यूएशन भी करानी पड़ती है। एक हेल्थ केयर सर्टिफिकेट होता है जिसको टाइप 1 बोलते हैं हम। टाइप 1 सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ताकि आप सेफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो। उसके लिए आपको कोई एम्प्लॉयर चाहिए। जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने किसी का H1B स्पॉन्सर करना है, तो मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हमारी सैलरी $1 मिलियन है, उसमें से मैंने $70,000 इस बंदे को अगले 3 साल के लिए देने हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैंने साइन कर दिया है। चाहे मेरी कंपनी डूबे, चाहे मेरे पैसे खत्म हो जाएं, पर इसको पैसे मिलते रहेंगे, तो इसलिए इसको वीजा दे दो। ये स्पेशलिटी वीजा माना जाता है। इसका मतलब कि मुझे और कोई अमेरिकन नहीं मिल रहा वो काम करने के लिए। जैसे नीरज है, नीरज को 100 लोगों को पढ़ाना है पूरे साल में हिंदी में, तो कोई अमेरिकन तो नहीं पढ़ा सकता ना, तो फिर मुझे उसका H1B लेना पड़ेगा। फोर्थ वीजा होता है H4। वो आई थिंक आप काफी कॉमन होता है। अगर आप शादी करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके अगर पार्टनर जो हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, अगर वो डिपेंडेंट हैं ऑलरेडी, मतलब वो ऑलरेडी H1B ले चुके हैं, तो फिर आप H4 वीजा पे आते हो। वहां पे आप काम नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे आपका स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको वीजा मिल जाएगा अपने शौहर का या बीवी का, तो फिर आप H1B उनके साथ काम कर सकते हैं। तो थोड़ा लेट होता है, बट आप आ सकते हैं यूएस में, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो लास्ट में जो है वो ग्रीन कार्ड, वो तो लॉटरी है सबकी। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो फिर ना कोई टाइप 1 चाहिए, ना कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए। आप किसी भी क्लिनिक में कॉल करें, बोलें कि मुझे जॉब लेनी है, तो आपको पैसे शायद कम दे देंगे शुरू में, बट वो आपको जॉब दे देंगे, क्योंकि पीटी की डिमांड बहुत है। अकेले कैलिफोर्निया में ही जो मेरा स्टेट है अभी, अबाउट 8,000 पीटीज की शॉर्टेज दिखाई हुई है उन्होंने, कि 8,000 पीटीज हमें और चाहिए सिर्फ कैलिफोर्निया में। तो डिमांड बहुत है, स्पेशली अगर आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू बोल सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट क्लाइंट है जिसको लैंग्वेज नहीं आती, इवन स्पेनिश अगर आपने सीखी हुई है, तो वो काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ग्रीन कार्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ग्रीन कार्ड को सिटीजनशिप लगने में थोड़े साल लग जाते हैं, बट ग्रीन कार्ड आपका बेस्ट फ्रेंड माना जाता है वीजा के टाइप पे। चलो, आई थिंक ये मैंने थोड़ा एक रियलिटी बता दी, क्योंकि सपने हो जाते हैं कि अच्छा मैं ऐप भी कर लूंगा, मैं फाइनल फ्रंटियर की थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे आ रहा है ये सब, मैं चला जाता हूँ। बट रियलिटी में ये भी आपको कंसिडर करना होता है कि आप कौन से वीजा पे आ रहे हैं। आपका स्कॉलर बनने का प्लान है, आपको पीएचडी करनी है, मास्टर्स करनी है, कि आपको आके सीधा काम करना है। अगर काम करना है तो फिर H1B या ग्रीन कार्ड चाहिए होगा। थोड़ा और डिटेल जस्ट लास्ट में, कंटेंट नहीं करूंगा और मैं क्विज नहीं पूछूंगा आपको, और वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं आप अगर यहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप आ जाएं तो काफी सेटिंग्स हैं उसमें। आप सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे जाती है, तो मैंने सारी लिस्ट कर दी। मोस्टली हॉस्पिटल हेल्थ केयर सबसे अच्छा माना जाता है अभी पे वाइज में, बट आउट पेशेंट क्लिनिक भी है। जैसे दिलीप मस्कुलोस्केलेटन के एक्सपर्ट हैं, अगर उनको आना है तो वो आउट पेशेंट क्लिनिक में जाएंगे, जो हम ओपीडी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में। वहाँ पे पेशेंट आएंगे रेगुलरली, कोई ऐसे एडमिशन नहीं होगा। सुबह खुलेगा 9 बजे, 5 को बंद हो जाएगा। जहाँ नीरज अभी आउट पेशेंट क्लिनिक में काम करते हैं। कुछ वेलनेस सेंटर्स होते हैं, कुछ होम हेल्थ होता है। होम हेल्थ का मतलब यहाँ पे होम विजिट माना जाता है, जब आप किसी के घर जाते हो, उनको ट्रीट करते हो। माहौल थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ पे जाते हैं, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं साथ में, किसी का दादा हम ठीक करने जा रहे हैं, किसी के पेरेंट्स को ठीक करने जा रहे हैं, वो चाय भी पूछने आएंगे। 3-4 उसके मोहल्ले वाले, पहली बार जब आप जाओगे गाड़ी में तो पास में आके बैठ भी जाएंगे, देखते भी रहेंगे कि क्या कर रहा है, क्या हिला रहा है, हाथ कैसे क्लोनस आ रहा है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड 1-on-1 आपको स्पेस मिली होती है। और स्निफ और स्किल नर्सिंग फैसिलिटी भी काफ़ी कॉमन है हमारे लिए, स्पेशली फॉरेन ट्रेन के लिए, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल से थोड़ा लो लेवल का काम होता है, बट जाना प्रोसेस वही शुरू करना होता है। और अगर आपको स्कूल सेटिंग में करना है, मोस्टली सारे स्कूल्स जो होते हैं 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, कोई हाई स्कूल के एथलीट होंगे इनके, उनको भी पीटी चाहिए होती है, तो आप एजुकेशनल सेटिंग में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पैसे कितने बनते हैं ये तो आई थिंक सबके दिमाग में होता ही है, तो मैं आपको अपनी सैलरी बोल के नहीं अट्रैक्ट करूंगा कि अच्छा मेरे इतने बनते हैं आप भी आ जाएं। ये नेशनल एवरेज है हमारी। नेशनल एवरेज में ये दिखाया जाता है कि $80,000 का जो मार्क है वो नॉर्मल मीडियन है। इसका मतलब कि $75,000 to $85,000 आपकी सैलरी पर ईयर की होगी। और शुरू में होता है, कन्वर्ट कर लेते हैं, यार मैं तो यहाँ भी 70,000 बनाता हूँ महीने के, ये क्या हो गया डॉलर में, क्या मुझे साल में कम पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मीडियन इनकम अमेरिकन की है, अगर कोई नॉर्मल अमेरिकन है जो पीटी नहीं है, उनकी इनकम अबाउट $30,000 to $40,000 पर ईयर होती है। तो पीटी प्रोफेशन थोड़ा हायर पेड जॉब में माना जाता है। आप इसको कन्वर्ट कर लें, मैं नहीं करूँगा, हर कंट्री का अलग करेंसी आप कन्वर्ट कर लें तो काफ़ी पैसे बन जाते हैं। शुरू में जब हम भी एज ए स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, जहाँ आई थिंक आकांक्षा आपको बता देंगी, अभी उनके भाई कनाडा आए हैं, तो फीस इंडिया में बड़ी लगती है कि अच्छा कनाडा जाना है, बट यहाँ पे सिर्फ $10,000 हुए, क्योंकि वो सैलरी कन्वर्ट करना, जहाँ आप इंडिया अगर पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, तो 3-4 लाख करेंसी में महीने का अगर भेजेंगे तो काफ़ी अच्छा सेविंग भी हो जाता है आपको। अगर कोई क्वेश्चन है इस पे तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। हर एक स्टेट का सैलरी थोड़ा सेटिंग का सैलरी अलग अलग होता है। तो लास्ट जो मेरा फिनिशिंग टच होगा वो ये है कि अगर आपको एनपीटी फाइनल फ्रंटियर में आना है, जहाँ आपको कंसिडर करना है कि मुझे प्रोसेस शुरू करना है, तो हमारा 3 मिशन होते हैं, इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस और अटेंशन। कि हमने जैसे आज आपसे बात हुई है, अच्छा लगा है, बट अगर आप ज्वाइन करते हैं जहाँ नीरज के साथ, जहाँ किसी के साथ भी, तो हमारा ये एक्सीलेंस और इंटेग्रिटी बहुत जरूरी होता है। कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एग्जाम में ये आएगा, नकल करके ये पास कर लें, क्योंकि हमें चाहिए कि आप पास करके पेशेंट को ट्रीट करें। पेशेंट तब गए कि इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ फॉरेन ट्रेन पीटी बड़े अच्छे होते हैं जी। अगर आप मेडिकल में देखें, आई एम श्योर आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स होंगे जो USMLE क्लियर करके, जहाँ कनेडियन मेडिकल एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, तो अबाउट 23% जो
डॉक्टर्स हैं वो देसी मतलब कहते हैं उनको, वो नॉन अमेरिकन हैं 23%, जबकि फिजिकल थेरेपी सिर्फ 5 से 6% ऑन एवरेज हर स्टेट में होता है, कुछ स्टेट में ज्यादा है। तो हमारा मिशन ये है कि आप आए यहाँ पे, आके पेशेंट ट्रीट करें, थोड़ा एक फेस वैल्यू बने कि फॉरेन ट्रेंड पीटीज जो होते हैं वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि आप नो डाउट करते हैं वहाँ पे भी, पर यहाँ के अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये जो कॉन्टेक्ट हो गए ये हम बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे। बट मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कहाँ पे जाना है, क्या प्रोसेस है, क्या खर्चा है, कौन सी वैल्यूएशन करानी है, नॉन प्रॉफिट से कोई हेल्प चाहिए वो करनी है, जहाँ आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप जब अभी पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए हैं तो क्या पढ़ना है आपको, कैसे बेसिक्स रिव्यू करने हैं ताकि यहाँ के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। बाकी टीम हमारी आपके लिए हमेशा रेडी रहेगी। आपको मैंने थोड़ा बता दिया कि फ्री कंटेंट के लिए कैसे क्लिक करना है, तो ये इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट है जो अगर आपको उसको फॉलो करना है तो उस पर काफी कंटेंट आता रहता है रोज, अमेरिका एनपीटी का भी और पीसीई का भी, पीसीई जो कैनेडियन एग्जाम है। ट्विटर पे कुछ लोग होते हैं और फिर हमारा ये फेसबुक ग्रुप है जो उस पर रेगुलर क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, वो अभी आप कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। मेरी दिलीप से सतीश भाई से थोड़ी सी बात हुई थी ऑलरेडी। हम सोच रहे थे कि एनपीटी फाइनल फ्रंटियर का पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप एक बना देंगे जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जो स्टूडेंट्स को इनरोल्ड हैं, जहाँ जिसका वीजा क्वेश्चन है, जहाँ कोई मास्टर्स पीएचडी के लिए क्वेश्चन है, जहाँ एनपीटी के लिए क्वेश्चन है, तो वो मैं आपके साथ इन टच रहूंगा। अभी हमने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, थोड़ा हमें वेबिनार में आपका भी फीडबैक चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या हम ऐड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम आपको डिटेल में बता देंगे। व्हाट्सएप आई थिंक दिलीप इन टच रहेंगे आपके पास, जब वो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह भेजेंगे तो हम इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो टीम हमारी सारी आपके साथ है। मेरा आई थिंक मेरी एज आपकी एज थोड़ी डिफरेंट होगी। मैं 3rd के 4th स्टैंडर्ड में था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, राइट, 1992 में। आपके प्रेसिडेंट जो हैं इमरान खान, वो तब क्रिकेट के कैप्टन थे। अगर क्रिकेट के शौकीन है कोई यहाँ पे तो आई थिंक उनको मेमोरीज होंगी याद। तो उसमें मैंने जब अपना प्रिपरेशन शुरू किया था ना, पीएचडी करनी है मुझे, स्कॉलरशिप पे लेनी है, तो मैं गाना सुनता होता था, बड़ा मेरे जहन में अभी भी वो ताज़ा है कि उसमें होता था लाइन की, अगर है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुफ्तजू जो करे तो छुए आसमान। तो वो अभी भी आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। बट अगर आपको सच में लगता है कि मैंने एक डिफरेंस क्रिएट करना है तो थोड़ी स्ट्रगल तो होगी, जुफ्तजू जो आपको करनी है वो तो करनी है। बट अगर आप यहाँ पे आके एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि कल को 2 साल में 4 साल में आप मेरी जगह बैठे हो और आपको कुछ सुन रहा हो दूसरी तरफ कि कैसे मुकाम हासिल करना है अपने प्रोफेशन में, तो वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फ्रूटफुल चीज होगी इस वेबिनार की। तो आई थिंक यू ऑल वर ग्रेट। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं। नीरज तो आई थिंक आपको दिख ही जाएंगे, आकांक्षा भी हर पिक्चर में होंगी, बट हमारी बाकी टीम भी है। 28 लोगों का हमारा ग्रुप है। ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनी है तो हमारा बिजनेस मैनेजर है एक अमेरिकन फुल टाइम, जहाँ हमारे कुछ अमेरिकन स्टूडेंट जो होते थे वो टीम में ज्वाइन कर चुके हैं। बट नीरज सर पीछे खड़े हैं यहाँ पे, आकांक्षा भी पीछे हैं, और आई थिंक बड़ा अच्छा मौका मिलता है हमें जब भी हम जाते हैं, एक रिसेप्शन मिलता है हर स्टेट में, हर जगह में कि हाँ जी आपको हमने देखा हुआ है, जहाँ सुनी हुई आपकी वीडियोस, जहाँ आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं। तो थैंक यू सो मच सबको इनवाइट करने के लिए। जहाँ आपको अगर कोई क्वेश्चन भी हैं तो मैं यहीं पे रहूँगा अभी थोड़ी देर के लिए, बट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि यही था हमारा मेन एम। तो अगर दिलीप भाई आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है ठीक है, नहीं तो अगर मुझे क्वेश्चन कोई आंसर करना है तो मैं वो भी कर देता हूँ।